जिस मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। कहीं आपने ये वायरल लाइन इंस्टाग्राम पे सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है then I have a wonderful guest today to talk about this line. मुझे एक बिल्कुल ऐसा प्यार चाहिए था जो किसी उपन्यास पे, किसी पन्ने में लिखा जा सकता है। जिंदगी में प्यार फिर से ढूंढना, we'll call this first love 2.0. जिंदगी में आपको प्रेम तब मिलता है जब आप प्रेम ढूंढना बंद कर देते हैं। My name is Dr. Tanya. You know me better as Dr. Cutress, and this is She Comes First. And he had this giggle on his face, like as if like that very childlike giggle. और मुझे लगा ये 100% मुझसे बात करेगा। Oh yeah, I was like अब ये लाइन भी मारेगा 100%। मैं हर किसी को कहती हूँ कि आपका ब्रेकअप होना चाहिए, right? ब्रेकअप्स जो सीरियस ब्रेकअप्स होते हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या नहीं चाहिए। जो रिश्ता सरल होता है और सहज होता है और सिंपल होता है और सुबह की चाय की तरह होता है, जस्ट इजी 3 ingredients and you're done, वो रिश्ता अच्छा होता है। प्यार तो आपको बेहतर इंसान ही बनाता है, और अगर प्यार आपको बेहतर इंसान नहीं बना रहा है तो आप प्यार में नहीं हो, आप आदत में हो उस इंसान की। Beautiful. 10 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि ये आपकी ज़िंदगी होगी प्रिया, मैं कहती हो ही नहीं सकती। So tell me about your first love 2.0. What was that journey like? So first love 2.0, right? The last love. हाँ, दूसरी बार पहला प्यार। इससे मुझे याद आया, there's a poem that I wrote a long time ago called You, और उसमें मैंने लिखा था कि people always talk about the first love, but sometimes it is the last love that really needs the talking, because people don't talk about it enough. और हम लोग first love पे इतने fixated होते हैं that हम सब बात कर रहे होते हैं, वो पहली बार आपको प्यार कब हुआ था, how was it, love at first sight. We have so much focus on everything first in life that I feel we forget to give grace to things जो ज़िंदगी के end में आती हैं. It's like, especially, I don't know how old you are, but 30s, like for me, has been the most liberating decade of my life as well, right? So anyway, coming back to the love, I think ज़िंदगी में आपको प्रेम तब मिलता है जब आप प्रेम ढूंढना बंद कर देते हैं. And I have always believed that about everything good in life, that the moment you stop seeking it with desperation or searching it thinking कि यार ये नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तब वो चीज़ आपके पास यूनिवर्स भेजता है और बहुत प्यारे तरीके से भेजता है. So that's how it worked out for me. I was at that point in life, I had gone through my divorce. I was in that phase कि यार होती है शादी होए, प्यार होता है होए, नहीं हो तो भी ठीक है. स्वयं सिद्ध. And I really do enjoy my own company as well. I find myself a very self-sufficient woman. I've never craved company in general also. Like, I can live easily without anyone in my life other than family and friends. तो मैं ऐसे पॉइंट पे थी अपनी ज़िंदगी के where I was like होता है हो नहीं हो तो भी ठीक है. And that's when I ended up finding the love of my life in a lift, Tanya. Wow. Can you imagine? Okay. Yeah. Like I grew up wanting कि वो filmy love story होनी चाहिए. It should be like Bollywood. And I met him in the elevator. So Wow, yeah. tell me more. Take the elevators more often. Skip the staircase. Skip the staircase. Very, very excellent heart advice in more ways than one. So I was coming home from the gym. And in typical, अच्छा मतलब हार्ट एक्सरसाइज तो हो गई. हाँ वो कार्डियो हो गया था मेरा, तो मैंने कहा यार अब मैं सीढ़ियाँ तो लूंगी नहीं. I used to live on the 14th floor of this building. Justified. And I had only been in Bombay for like a year, right? And typical Bombay style, मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है. Like because I was just too busy living my own life. And I was going through such a bitter and negative phase at that time as well. I was grieving, getting over the divorce, and I like to mourn in private. So, I was privately taking time to process it. I had not even talked about it publicly, that the divorce has happened. And I was that person कि किसी को लिफ्ट में आने से पहले मैं दरवाज़ा बंद कर देती थी. And just before that door closed, this guy enters and he had this giggle on his face, like, as if, like, that very childlike giggle. और मुझे लगा ये 100% मुझसे बात करेगा. उसकी शक्ल देख के मुझे लग गया था कि ये लड़का मुझसे कुछ तो पूछेगा, right? Maybe which floor or some random conversation will happen. And it did. So I pressed 14th, he pressed 15th. We got into this conversation about, oh, you live here. And I was like, oh, yeah. I was like, अब ये line भी मारेगा, 100%. And then he was like, oh, if you ever need any help, आप मुझे ज़रूर बताना. मैंने कहा 100%, he's one of those guys. Like, I know what kind of help you're talking about. So I was a cynic completely, and I didn't believe this guy. I didn't believe in the goodness of his heart.
बट जैसे ज़िंदगी ने मुझे दिखाया एक एक लेयर उस रिश्ते से, लाइक इट वाज पीलिंग लाइक एन अनियन फॉर मी, एंड फाइनली वी बिकेम फ्रेंड्स एंड आई एंडेड अप falling in love with him, and now we have a little 2-year-old baby and a cat baby. So life couldn't be better. आज 10 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि ये आपकी ज़िंदगी होगी प्रिया, मैं कहती हो ही नहीं सकती, both personally and professionally. So I think I'm very grateful and very blessed कि ये जो अभी चल रहा है वो अच्छा है. That's beautiful. And आपका मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आपने बोला था दैट हर रिश्ते की सही शुरुआत दोस्ती से होती है. That's true. And you just shared your story अभी, Yeah. and आपने बताया that you weren't seeking love, Yeah. and it just walked into your life because it started with friendship. Yes. And that is such a rare thing, especially in the culture we grew up in, जहाँ हमें we're taught to run after love, कि Yeah. ढूंढो, Yeah. go on the apps, Yeah. और Yeah. जितने गाने सुनो सब कुछ प्यार के बारे Yeah. में है. Yeah. I find that so relatable because when I was going through my divorce, just like you, Yeah. wanted to grieve in private, did not declare it anywhere. And तब मेरे अंदर वो cynic बहुत जोर से जगा हुआ था, and I would talk about how I think I was getting frustrated by how जो फिल्म देखो प्यार के बारे में है, जो गाना सुनो प्यार के बारे में है. It was almost this message that is given to us Yes. कि अगर लाइफ में प्यार नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, Yes. और जिस दिन प्यार मिला तो सब मिल गया. And शादी को as a status symbol देखना, right? As an achievement देखना. I don't know about you, but I grew up where we all kind of, looked at marriage as if it's just some sort of a wonderful thing. And I've been married twice now, and I'm in a beautiful marriage. But I would still tell everyone कि शादी कोई status symbol नहीं है. अगर नहीं भी होती तो it's okay. Like, we women can have a beautiful life on our own as well. So I think that's really important. That's really important. So, And that's so rare to hear that, because I wish I had I wish I could see an episode like this when I was younger, और जब मैं सोचती थी कि हाँ भाई कि मतलब प्यार मिलेगा तो सब मिल जाएगा, एंड लाइफ कूल हो जाएगी, एंड मजे आ जाएंगे, एंड शादी बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड ऑनेस्टली लाइक it changed my definition of how I see love once I was able to understand कि प्यार और शादी सब कुछ नहीं होता है. And that's not to say that प्यार और शादी बहुत खूबसूरत चीज़ें नहीं हैं, हो सकती हैं, बट आइसक्रीम भी बहुत खूबसूरत हो सकती है, बट हर किसी को आइसक्रीम खाने की जरूरत नहीं है. Absolutely. और हर किसी को आइसक्रीम पसंद भी नहीं है. Exactly. Right? और मैं ये शादी के बारे में भी मानती हूँ, और मैं having children के बारे में भी यही मानती हूँ. Because a lot of my friends are at that age now, उन्हें बोला जा रहा है बच्चे कर लो, बच्चे कर लो, बच्चे कर लो. And I also had a child very late in life. But ये बात हमेशा हम लोगों को रखती है कि यार हर किसी को अगर you have to have a child. If you have a uterus, you better have a baby. You will if only you have know a true love. uterus, you better have a cute baby. But I think motherhood is also not for everybody, and marriage is also not for everybody. So, yeah. I think that definition really changes a lot in life, and I'm very glad कि हम उस age पे हैं, हम इस day and age में exist करते हैं where we get a chance and opportunity to explore these things. And for me, जो मैंने सबसे बड़ा change देखा was that I learned what worked for me. क्या मैं एक्सेप्ट कर सकती थी. सो व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज लाइक व्हेन इट कम्स टू लव 2.0, रोमांटिक क्या होता है, एग्जॉस्टिंग क्या होता है, क्या वो बदला आपके लिए, एंड अगर बदला तो क्या डिफरेंस देखा आपने. हाउ इज रोमांस एंड व्हाट यू थॉट वाज रोमांटिक एंड व्हाट यू नाउ थिंक इज एग्जॉस्टिंग, क्या अंतर है उसमें. आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो जब आपका कोई ब्रेकअप होता है तो आप बहुत सीखते हो. मैं हर किसी को कहती हूँ कि आपका ब्रेकअप होना चाहिए. राइट. ब्रेकअप्स जो सीरियस ब्रेकअप्स होते हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या नहीं चाहिए. I grew up as this, very strong, very intelligent, academic woman who always knew what she wanted. So I always grew up as this girl who always knew what she wanted in life. But I think मैं कभी ये नहीं जानती थी कि मुझे क्या नहीं चाहिए. Right? चाहे वो काम को लीजिए आप, चाहे आप रिश्तों को लीजिए. My marriage actually taught me what I don't want. My marriage is the one that taught me the non-negotiables. उससे पहले के भी सारे affairs and boyfriends और ये सब, I don't think मैं वहाँ पे भी कुछ सीखी थी. I think it was the breakdown of my marriage that taught me कि मुझे कैसी शादी नहीं चाहिए. And that was very empowering for me as a person. So when I met Karan, my first thing with him was that, okay, if this ends up being anywhere, जब हम friendship से प्यार की तरफ जाने लगे, प्यार 2.0, we wanted to live together first.
बिकॉज आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, दैट यू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन. इफ़ यू कैन लिव विद देम ग्रेट, इफ़ यू कांट लिव विद देम ट्रैवल विद देम, स्पेंड टाइम, हैव द हार्ड कॉन्वर्सेशंस, हैव सम ऑफ द अगली फाइट्स. यू विल अंडरस्टैंड कि ये इंसान सिर्फ लड़ना जानता है या लड़ने के बाद फाइट को रिजॉल्व करना भी जानता है, और अगर रिजॉल्व करना जानता है तो कैसे करता है. यू विल लर्न देयर कोपिंग मैकेनिज्म्स, यू विल लर्न सो मच अबाउट देम. तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था. सो दैट्स बीन माई जर्नी ऑफ लव 2.0. एंड आई डोंट थिंक अगेन अ लॉट ऑफ पीपल गेट टू हियर दिस, बिकॉज हम क्या कहानियाँ सुनते हैं. हमारे घर एक मेरा दोस्त है, उसके मम्मी पापा की शादी ऐसे हुई थी कि वो लोग एक बस में जा रहे थे, उसके नाना जी बस में बैठे थे इस तरफ, और बस के उस तरफ उसके नाव फादर बैठे हुए थे. नाना जी ने कहा देखो भैया लड़का अच्छा लग रहा है, इसकी जातवात पूछ लेते हैं. जातवात सेम निकली, बिकॉज दैट इज क्लियरली द ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो पूछा जाता है, और कुछ तो नेवर गेटिंग इनटू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दैट. बट ये उन्होंने मतलब इतना सा इन्होंने कॉन्वर्सेशन किया, एंड ये बोले ठीक है चलो घर चलो. उनको घर ले गए, उनका मतलब एंगेजमेंट हो गया. दिस इज द काइंड ऑफ ideas of marriage we have grown up with. And अब जब हम आके बोलते हैं that we want to live together, we want to see how this goes, it feels so radical, but it's really not radical. It's really not. Yes, absolutely. कितनी सिंपल सी बात है कि आप समय ले, आप समझें कि क्या रोमांटिक है, what you can put up with. बिल्कुल. हमारे नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं. आई थिंक ये समझना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कभी भी कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होगा, कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होगा. लेकिन क्या इस इंसान के इम्परफेक्शंस के साथ मैं जी सकती हूँ? क्या इस इंसान के इम्परफेक्शंस के साथ मुझे जीना अच्छा लगता है? और क्या इसके परफेक्शंस, जो परफेक्ट चीज़ें वो ज़्यादा भारी है, इट्स लाइक अ बैलेंसिंग एक्ट एज वेल. एंड द सेम गोज फॉर मी, राइट. मैं भी एक परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर भी खामियां हैं. तो आई थिंक उनको भी एक मौका मिला देखने के लिए कि क्या अच्छा है और क्या इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं काम चला लूँगा. आई थिंक वो होती है एक अच्छी शादी और एक अच्छा रिश्ता, वे यू आर विलिंग टू पुट अप विद ईच अदर्स इम्परफेक्शंस, बिकॉज द परफेक्ट थिंग्स आर सो अमेजिंग कि आपको लगता है यार ठीक है. बिकॉज इट्स वेरी इजी टू पुट अप एन एक्ट साल 6 महीना. बिल्कुल. कि हाँ भाई डेटिंग कर रहे हैं, देख लो मैं तो ऐसे ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ. और ये कितना प्रॉब्लमैटिक है ना, ये मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ. ओह गॉड, ये एक अलग ही टॉपिक है ये. और लड़कों को ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो ऐसा ही हूँ. हाँ भाई देख लो तुम अपना, मूवी का डायलॉग है ये, मूव ऑन. तुम ऐसे थे, ऐसे ही रहोगे जिंदगी भर. या अच्छा रिश्ता आपको हमेशा एक बेहतर इंसान बनाएगा. इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट वेज ये समझने का कि आप एक अच्छे रिश्ते में हो या नहीं इज अगर आप ग्रो हो रहे हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इवन करियर वाइज. अच्छे रिश्ते में आप तो आपके करियर भी हमेशा अच्छा ही चलेगा. अगर ये सब हो रहा है, दैट मीन्स आप एक हेल्दी, एक अच्छे रिलेशनशिप में हो. इफ़ यू आर बिकमिंग अ बिटर पर्सन, यू आर गेटिंग मोर एंग्री, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डीपली अनहैप्पी, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट इन द राइट रिलेशनशिप. बिकॉज प्यार तो आपको बेहतर इंसान ही बनाता है, और अगर प्यार आपको बेहतर इंसान नहीं बना रहा है तो आप प्यार में नहीं हो, आप आदत में हो उस इंसान की. ब्यूटीफुल. तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट हैबिट देन. और वो मुश्किल होता है, लेकिन इट्स पॉसिबल. वाओ. नहीं, एंड जो growing as a person, becoming a better person, these are such important things. Because professionally at least as a woman, मुझे लगता है कि हम सबको कितना ज़रूरी है ये जानना how our partner handles success and failure. I was just talking about this in one of the other episodes also, and मुझे तब शायद मतलब a lot of these thing moments are happening in my head as I'm going through the show कि क्या बातें हमने कभी रियलाइज ही नहीं करी, जो कभी डिस्कस ही नहीं हुई. हाउ योर पार्टनर सेलिब्रेट्स योर सक्सेसेस, हाउ दे not compensate, but how they take care of you in your failures. How secure they feel around your professional success is such an important conversation जो लड़कियों को मिलना चाहिए. Absolutely. क्योंकि हम शायद हिस्टोरिकली लड़कियों को इतना काम करने का मौका नहीं मिलता था, शायद ये कॉन्वर्सेशन हमारे दिमाग ही में नहीं आया. एंड इट लेड मी टू थिंक कि क्या विद एज हमारे स्टैंडर्ड्स अपग्रेड हो गए हैं. हाँ होते हैं. या
हमारा टॉलरेंस फॉर बुलशिट कम हो गया है। आई थिंक बोथ राइट, दोनों चीज़ें हैं। आई थिंक जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, आई थिंक मैं दूसरों को तो खैर समझ ही रही हूँ, अपने आप को और बेहतर तरीके से समझने लग गई हूँ। तो आई तो लव ग्रोइंग ओल्डर। आई एम लाइक वन ऑफ दोज वुमेन हु आई जस्ट लव ग्रोइंग ओल्डर। द ओल्डर आई एम गेटिंग, आई थिंक द मोर वंडरफुल आई एम बिकमिंग, यू नो, हर तरीके से। लाइक सब कुछ समझ में आने लगता है एज के साथ साथ। एंड हम जब छोटे थे हमें लगता था ओ 30 तक तो मेरे 3 बच्चे होंगे। एंड आई रिमेंबर मैं जब 15-16 साल की थी, मैं 30 और के लोगों को देखती थी, कहती थी ओ गॉड ये कितने बड़े लोग हैं, और उन लोग के बच्चे बच्चे भी होते थे उस टाइम। हम लोगों ने तो लाइक यू नो एक रिवर्स ही जिंदगी जी है। नाउ लाइक 40 इज द न्यू 25। या एग्जैक्टली राइट। अब मैं सोचती हूँ 40 इज द न्यू 25, लाइक आई एम वेटिंग टू बी 40, व्हिच ऑब्वियसली आई विल बी वेरी सून। बट वो सारी वो जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं, जो बचपन की हमारी चीज़ें थी, अब हम उन चीज़ों को अलग तरीके से सोचते हैं। लाइक मेरी मम्मी का फेवरेट डायलॉग होता था, शादी के बाद जो करना हो करो। और ये कितनी गलत बात है। Yeah. मेरी और मेरी मम्मी की कॉन्वर्सेशन हुई थी मेरे डिवोर्स के बाद, डिवोर्स के भी आई थिंक 1-2 साल बाद। मैंने कहा मम्मा आपको पता है यू आर अ वंडरफुल मदर, और अभी भी आप यू आर द मोस्ट अमेजिंग, माई मदर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं कहा लेकिन जब हम छोटे थे ना, आप ये बात हमें हमेशा बोलते थे, शादी के बाद जो मन में आए करो। मैं कहा दिस इज नॉट राइट, क्योंकि मेरी जो पहली शादी थी, आई वाज barely 20 years old, वो मैंने इसीलिए की थी क्योंकि मुझे लगा था बस बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती हूँ, फिर अब मेरा जो मन में आएगा मैं करूँगी। सो यू स्टार्ट लुकिंग एट शादी एज एन एस्केप, कि ये मैं अगर मुझे अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी जीनी है तो मैं शादी कर लेती हूँ, ताकि मम्मी पापा मुझे किसी चीज़ से नहीं रोके। मेरी फर्स्ट शादी वॉज अ रिबेलियन, राइट, बिकॉज आई वॉज लाइक अब मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है। एंड शादी शुड ओनली बी बोर्न आउट ऑफ लव। You should only get married to someone if you're deeply in love with someone कि इसके बिना like I can't imagine a life. If it is for anything else, then it is not really the right thing for you. और मेरे हमेशा जहन में वो बात रहती थी कि मम्मी ने कहा शादी के बाद मैं जो करना है कर सकती हूँ। So sad. कितनी लड़कियों को मुझे लगता है जिंदगी जीने का कभी मौका ही नहीं मिलता Yeah. बिकॉज शादी के बाद जो करना है कर लो, एंड शादी के बाद ऐसे ऑनस्लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू नो थिंग्स यू हैव टू टेक केयर फॉर। अब आप घर की बहू हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं दैट you never get a chance to be a person. To be a person, yes. And I come from a very well-educated family as well. You know, my mother is like not one of those mothers. She's not patriarchal by nature at all. But I think कहीं ना कहीं उन्होंने भी growing up ये sentence सुना होगा ना, कि शादी के बाद जो करना हो करो। तो इतना आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, इतना वक्त उनके साथ में बिता रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यंग वुमेन। लेकिन अगर आप उनको शादी एक लाइसेंस की तरह दिखा रहे हो कि दिस इज़ योर लाइसेंस टू फ्रीडम, तो वहाँ हम लोग गलत चले जाते हैं। एंड आई थिंक चाहे यू नो आई हैव अ सन, बट even with sons, you know, mothers often say things like तेरी बीवी ही तेरे को ठीक करेगी, शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा, अभी ऐसा बिगड़ा हुआ है शादी। So you also start thinking of शादी as something जो आपको फिक्स कर देगी। And I think आधे से ज़्यादा मर्द यही सोचते हैं कि बीवी आएगी और उनकी ज़िंदगी में कैसी छड़ी घुमाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। And that's not how it works. So I, as a mother, I'm going to be very mindful of the way I talk about marriage and relationship with my child or maybe children. I hope you're able to do that in the way that you communicate so Yeah. beautifully, because हम शायद बॉय मदर्स को या बॉय पेरेंट्स को ये कॉन्वर्सेशन कभी सिखाते ही नहीं सिखाते है। हैं, हम खाली ये सिखाते रह जाते हैं कि लड़की को कैसे बचा के रखना है और Yes. कैसे प्रोटेक्ट करना है, Yes. बट ये भी तो सिखाना है कि लड़कों को कैसे प्रोटेक्ट करना है Yes. फ्रॉम नॉट बिकमिंग शेल्स ऑफ देमसेल्व्स। Absolutely, yes. And excessive pressure of anything in life, चाहे वो career हो, चाहे वो शादी हो, वो नहीं होना चाहिए बच्चों पे, यार. And I'm also learning to be a parent right now, so I'm also, you know, trying to understand what's my parenting style. And I know this is love 2.0, लेकिन parenting 2.0. It's a part of love. It's a part of love, yes, yeah. So when it came to dating again, what was that like? Did you know, as you mentioned, you had your non-negotiable sorted. Did you know what was जो पहले जो चीज़ें बोरिंग समझी जाती थी, क्या वो अब रोमांटिक हो गई थी? Yes. Okay, let me come to this question. तो मैं जब छोटी थी, मुझे हमेशा से, जैसा मैंने आपको बताया, मुझे एक फिल्मी प्यार चाहिए था। मुझे एक बिल्कुल ऐसा प्यार चाहिए था जो किसी उपन्यास के किसी पन्ने में लिखा जा सकता है। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। And there used to be this line that I used to say, why can't life be like literature?
ज़िंदगी साहित्य की तरह क्यों नहीं हो सकती? but then you grow up and realize कि ज़िंदगी साहित्य की तरह नहीं होती है. There were so many things when I was growing up. I used to think जो relationship में बहुत ड्रामा चल रहा है, जो relationship में आपको ऐसा लग रहा है कि बस यही होगा या ये नहीं होगा, where there is too much going on, कि वो प्यार होता है. Right? And I think मेरे शुरू के सालों में I dated boys who made me feel like that. I dated boys I could fix. You know, बीवी आएगी सब ठीक कर देगी. I dated boys जो मेरे लिए एक projects थे. You know, मैं इनकी ज़िंदगी बदल दूँगी. वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा. I will be that girl. Yeah, but I think now that I'm in my late 30s, I've started realizing कि जो रिश्ता सरल होता है और सहज होता है और सिंपल होता है और सुबह की चाय की तरह होता है, जस्ट इजी 3 ingredients and you're done, वो रिश्ता अच्छा होता है. इफ़ हर रोज़ यू आर नेगोशिएटिंग थिंग्स, हर रोज़ यू आर मीडिएटिंग थिंग्स, हर रोज़ आप कह रहे हो यार मैं उसको ये नहीं बोलती, उसको ऐसा कैसे लगेगा, वो प्यार नहीं है. एंड दैट शुड नॉट बी आवर डेफिनेशन ऑफ लव ग्रोइंग अप एज वेल. आई तो हैव बीन इन लाइक द most toxic terrible relationships growing up because I just had that pattern of always choosing. I had the wrong picker. Always choosing the wrong people. But मेरे जो ex husband थे was a great guy, right? A very, and still is, right? A very very good person. मेरे लिए इसलिए उस शादी से निकलना मुश्किल था because आप किसी अच्छे इंसान को छोड़ने से पहले 100 बार सोचते हो. So I have learned that as well. कि डिवोर्स का रीज़न ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि वो इंसान आपको पीटता है या उसने आप पे चीट कर लिया. जब I don't know about you, but when I first got divorced, I didn't tell anyone. My parents also did not know I'm getting divorced. Wow. And the reason I had done that, and this was a thing between me and my ex-husband mutually, कि we are going to keep it to ourselves. The reason was because I didn't want anyone else to be affecting my decision. बेटा ऐसा क्या हो गया है. And then I came to India and I told my parents couldn't believe it, and I remember I told my mom first and we were having chai in Chayos. So मम्मी के सामने देसी अदरक वाली चाय कड़क कम दूध कम शक्कर, and मैंने मामा को बताना शुरू किया. And my mom was just sipping tea and thinking क्या ये सच बोल रही है. And then she had that moment, she was like, तो सब कुछ हो गया है. मैंने कहा हाँ हो गया है, लाइक we're all done and हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्कस करके किया और एक बार आप ही बात कर लेना उससे to ask how he's doing and this and that. My mom could not believe it. She really thought I was lying to her. Wow. She thought I was just I was pulling a prank on her. Then I had to go through that entire thing. जैसे मुझे मम्मी को पता नहीं मम्मा सच में हमारा डिवोर्स हुआ है और ये मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये सब सच है. My dad on the other hand, and I've always been a daddy's girl growing up. मेरे पापा हमेशा मुझे बेहतर समझते हैं compared to my mom. My father could not believe it. मेरे father का question था क्या हुआ? उसने cheat किया? मैंने कहा नहीं. मारा? मैंने कहा नहीं. तो फिर क्या हुआ? तो और क्या हो सकता है divorce का reason? तो उन लोगों के हिसाब से कुछ ऐसा बम विस्फोट होना था जिस वजह से दो लोग अलग हो जाएं. तो मुझे अपनी फैमिली को ये समझाना मुश्किल था कि कई बार दो लोग एक दूसरे के साथ एज हस्बैंड एंड वाइफ के लिए नहीं बने होते. वी वर नॉट मेंट टू बी हस्बैंड एंड वाइफ. हम लोगों की ज़िंदगी की जो दिशाएं थी वो बदल गई थी. एंड समटाइम्स जो सबसे अच्छी चीज़ आप कर सकते हो दूसरे इंसान के लिए वो ये होता है कि आप उन्हें छोड़ दें और हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा काम कर सकते थे. एंड ऑनेस्टली हमने सबसे अच्छा काम ज़िंदगी में यही किया कि एक दूसरे को छोड़ दिया. ना वो मिजरेबल है ना मैं मिजरेबल हूँ. ही इज़ मैरिड टू समवन, आई एम मैरिड टू समवन. वी आर बोथ द हैप्पीएस्ट वी हैव एवर बीन. तो आई थिंक डिवोर्स के बारे में ये आउटलुक चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है. Yeah, not just गाँव में, even शहरों में, in families like mine, which come from education and urban settings as well. तो आई थिंक डिवोर्स के लिए जो परसेप्शन है, और फिर बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें भी करी, हाय देखो उसने अपने माँ बाप तक को नहीं बताया था, ऑल माई रिश्तेदार दे थॉट कि इसने पहले से ही सोच रखा होगा. कोई भी कभी शादी नहीं करेगा क्योंकि वो चाहता है कि उसका तलाक हो जाए. Exactly. तो अगर हुआ है देयर मस्ट बी अ गुड इनफ रीज़न फॉर देमसेल्व्स कि ये चीज़ हुई है. एंड आई थिंक जैसा आपने कहा है सो ट्रू कि सिर्फ मारना पीटना चीट करना अकेला रीज़न नहीं होता है. समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट. एंड आई फाइंड दैट सो रिलेटेबल बिकॉज जब मैं यूएस से इंडिया वापस आई एंड आई टोल्ड माई मदर दैट ओके चाय उसमें चाय पीते हुए घर पे चाय पीते हुए कड़क चाय. And I was like, Mama, so
we are separating and you know we'll like to go for divorce. And जो भी हुआ, mummy was like, my mother's obviously extremely supportive because I'm a sex educator on the internet and I have a sexual health practice. So my parents have been super supporting of me my whole life. But जिस दिन मेरे डिवोर्स फाइलिंग का पहला दिन मुझे कोर्ट जाना था, my brother went with me, मेरी मम्मी को बुखार आ गया. Oh God. She had like a literal fever शाम को, and she was like, नहीं हमें ठीक नहीं लग रहा है बेटा, ऐसा क्या हो गया. मतलब Yes, exact. मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा क्या हो गया, right? और उनको यही समझना मुश्किल था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, we just fell out of love. Oh. and that And that's happens. okay. That happens. Yes. You can find out, which is why living with somebody is so important. You can live with somebody, you can find out they're not who you thought they were, who you Yeah. imagined they are like. And that is why that kind of intimacy, and when I say intimacy मैं physical intimacy की बात नहीं कर रही हूँ, but एक दूसरे इंसान को जानना इतना ज़रूरी है. Yeah. और हम लोगों को शादी में कैसे डाल देते हैं कि हाँ भाई कुंडली मैच हो गई या शक्ल ठीक लगी, 10 मिनट बात कर लो और शादी कर लो. Yes, absolutely. कि शादी इतनी बड़ी बात है. Yeah. एंड लाइक यू सेड, नॉन नेगोशिएबल्स बाद में समझ में आते हैं, और मुझे अब अपने नॉन नेगोशिएबल्स अब समझ में आ रहे हैं Yes. कि क्या चीज़ें मैं नहीं टॉलरेट कर Yeah, सकती. yeah. मेरे लिए living abroad was one of them. आपके लिए भी? When Like went you to didn't the want to US? live abroad? I hated living in Australia. I hated living in the US. I was very clear that I'm not going to go Same. there. मुझे बहुत बुरा लगता था ऑस्ट्रेलिया में रहना. Like मैं बनी ही नहीं हूँ बाहर के देशों के लिए. Like you know, I know accent है मेरा. I'm not made for that NRI lifestyle. वो एक बहुत routine lifestyle. Monday to Friday ये करेंगे, Saturday Sunday weekends होंगे, same लोग, same बातें, हर किसी का घर एक जैसा. Oh God, that देसी community thing as well. वो सबके अंग्रेजों के बच्चे नहीं रोते, कुत्ते नहीं भौंकते. यहाँ पे मुझे चाहिए होता है पू पू पै पै पी पी. आई नीड कि ये जो नॉइजेस हैं जो हमारे देश में होती हैं, यू नो, आई नीड दैट. एज मच एज आई अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अब्रॉड, राइट? बेटर AQI, लेस ट्रैफिक. मैंने ट्रैफिक से शादी थोड़ा करनी है. तो आई एम नॉट ब्लाइंड साइडेड कि हमारे देश में इश्यूज हैं, लेकिन जो हमारे देश की कन्वीनियंसेस हैं, जो हमारे देश में एक वार्मथ है ज़िंदगी की, मुझे वो कहीं बाहर नहीं मिलती. एंड आई हैव बीन एवरीवेयर, यू नो, UK, US, यूरोप. माय सिस्टर लिव्स इन द US एज वेल. मैं वो नीरस जीवन नहीं जी सकती मैं. मेरी तो इंद्रियां बंद हो गई थी. कुछ सुनाई नहीं देता आपको. घोर शांति. कोई हॉर्न भी नहीं बजाता. सच में मैं ही अपनी गाड़ी का बजाती थी. पीपल इज लाइक, हु इज दिस वुमन? कोई इंसान दिखाई नहीं देता. If you're living in the suburbs, you barely see people, right? You don't see children playing on the streets. You see them playing in the parks, but you don't see them playing on the streets. आप किसी से टकरा नहीं रहे होते हो. Like all your senses, they just stop working. And then the moment you land in India, आप कहते ओहो आ गए, घर आ गए. एयरपोर्ट पे पहुंचते ही जो हवा का भभका आता है और जो हॉर्न का ऐसे कैफे नहीं और आती जो है. टैक्सी वाले कहते हैं मैडम ऑटो टैक्सी बस. It's just I feel so alive in India. जो मैं I have lived. How long were you in the US? Oh, I was there for like a year, but I knew going in that I'm not going to live in the US, which I think was good. Knowing कि reproductive health वाले issues हैं वहाँ पे, इसलिए मैं बहुत clearly sabbatical पे And गई even the थी. medical system in the US is so terrible. Oh. I cannot. That will be a rant that will never end. इसलिए मैं वहाँ जाऊँगी ही नहीं. But what was very interesting for me was that जब मैंने the first person I told was actually when things started going wrong was actually a friend that I made off of Instagram who had also gotten divorced. And उसने एकदम बड़े शांति से casually coolly मेरा decision, मेरी story सुनी. And she gave me her opinion and she said, you know, this is what you should do and this is how things work. And my first question, you know, मुझे इतना दुख लगता है सोच के कि my first question to her was कि यार, first I was very sad about, you know, things ending. Obviously, we all are. Yeah. 100%. थोड़ा रोने वोने के बाद मेरा पहला सवाल ये था, will I ever be able to find love again? And it was so, मतलब मैं अब in hindsight सोचती हूँ that in that moment where I needed to take the next step of my life, I needed to make decisions, I needed to have that conversation. मेरे दिमाग में ख्याल क्या था कि मुझे जिंदगी मुझे में प्यार फिर से मिलेगा प्यार मिलेगा कि नहीं. Because हमें प्यार की ऐसे घुट्टी पिलाई जाती है पूरी जिंदगी, that it is the ultimate thing that will save you. And it was. And you were 30, you said? I was, yeah. Same.
When I got divorced as well, I think कुछ तो होता है 30s कुछ तो में होता है। औरतों का ना. हाँ. We're taught to be afraid of that Yeah. age, जबकि this is the best age. Yes, agreed. Also, it will sound really cliche me telling you this, but I think 30s में ना आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो. And because आप खुद से प्यार करना सीखते हो, तभी दूसरे लोग भी आपको प्यार कर पाते हैं. Like I feel that I have lived my entire 20s not loving myself enough. मुझे मैं अच्छी नहीं लगती थी. Like there was always, मैं हमेशा, मुझे दूसरा इंसान चाहिए होता था जो मुझे वैलिडेट करे. राइट मेरी खुशी हमेशा दूसरों पे डिपेंड करती थी. आई थिंक 30s में सबसे बड़ा चेंज मेरे अंदर वो हुआ था. एंड आई थिंक यू अट्रैक्ट हु यू आर, है ना. विजन बोर्ड्स हम आजकल बनाने लगे हैं, मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करने लगे हैं, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ. बट आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट विजन्स दैट यू कैन हैव फॉर योर सेल्फ इज़ दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. क्योंकि आप वही चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे ज़िंदगी में जो आप हैं. I mean, this is a Buddhist philosophy as well. You are what you think you are. And ये बहुत ज़रूरी है. I think one of the biggest differences in my first marriage and my second marriage, Finding Love 2.0, was that 2.0 वाले में ना मुझे पता था मेरे I loved everything about myself, the good, the bad, also the ugly. मुझे पता था कि मेरी क्या खामियां हैं, मुझे पता था कि मैं कहाँ सही नहीं हूँ. तो वहाँ पे जब आपके झगड़े होते हैं और रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, आप उनको एक अलग पर्सपेक्टिव से रिजॉल्व करते हो. बिकॉज आपको पता होता है यार मैं हमेशा सही नहीं हूँ. हर बात में मैं सही नहीं हूँ. और दूसरा इंसान भी कोई भगवान नहीं है. राइट पहले रिश्तों में और इनिशियली इन आवर टीनेज इन 20s वी पुट अ लॉट ऑफ ओनस ऑन द लवर्स एज वेल. 30s में आके स्पेशली फॉर मी आई थिंक मैंने ओनस वो अपने आप पे डालना शुरू किया. एंड दिस इज द मोस्ट क्लीशे थिंग आई कैन टेल यू कि जब तक आपका कप भरा नहीं होगा cheers to that. Cheers to that. तब तक आप किसी और को पानी कैसे पिला सकते हैं. सो फिल योर ओन कप फर्स्ट एंड दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू लव अदर्स कंप्लीटली. मैं चाहती थी किसी को ऐसे प्यार करना शिद्दत से. दिस मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए comes from the 7 stages of Sufi ishq. And it talks about कि प्यार रास्ता होता है लेकिन इश्क मुकाम होता है. That's the highest level of spiritual enlightenment, so to speak. But it all starts by loving yourself first. Nothing can exist without loving yourself. Even as a parent, I'm a new mom. As a mother also, I feel that the mothers need to love themselves, have time for themselves, ताकि वो एक अच्छी माँ बन पाए, एक खुश माँ बन पाए. खुश माँ एक अच्छी माँ होती है. तो जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है अगर आप वो सब बंद कर दें जस्ट बिकॉज यू हैव हैड अ बेबी यू विल बी द मोस्ट मिजरेबल मॉम. तो ये चीज़ इज द सेम इज एप्लीकेबल इन रिलेशनशिप्स एज वेल. जैसे हम अगर मैं कॉलेज में होती जब कबीर सिंह आई होती तो कबीर सिंह वुड हैव बीन अ वेरी अपीलिंग काइंड ऑफ मैन हु इज हमें सिखाया जाता है ऐसा आदमी हॉट होता है. जो कहे तुझे वो देख भी नहीं सकता मैं उसकी आंखें निकालूंगा. मेरा कॉलेज में ऐसा बॉयफ्रेंड था. मेरे भी रहे. एंड माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी वाओ यू आर सो लकी उसने अपना सर फोड़ लिया तुमने उसको हानि बोली. एंड आई वाज लाइक हाँ यार मैं तो बहुत लकी हूँ. मेरे लिए लड़कों की मोटरसाइकिल्स पे लड़ाइयाँ होती थी. मैं देहरादून क्यों ना वहाँ पे 2 व्हीलर्स बहुत चलते थे. एंड आई यूज्ड टू फाइंड ऑल दैट सो हॉट. राइट. या एंड नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ दैट एंड इफ आई सी मे बी अ यंगर गर्ल ऐसी सिचुएशन में तो मुझे मैं तो जाके ज्ञान भी दे देती हूँ बहुत ज़्यादा कि देखो कीप योरसेल्फ सेफ, दिस इज नॉट व्हाट लव इज सपोज्ड टू बी वगैरह वगैरह. बट मैं तो ज्ञान देती ही रहती हूँ. आप मुझे बताओ इफ़ यू वर टू गिव मे बी advice or maybe not advice, if you had to share your wisdom with your younger self when it came to love, what would you say? Exactly what I was telling you before कि प्यार वो होता है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए. Extreme highs, extreme lows, I still feel a little bit of jealousy is okay. वो हम सबको होती है, मुझे भी होती है. Like I am that person. But if it is at that point where किसी का खून करने को आप तैयार हो गया आपका बॉयफ्रेंड या आप किसी का कुछ करने को कि मैं सिर फोड़ दूंगी इस लड़की का अगर उसने तुझे देखा, वो सब हेल्दी नहीं है ऑब्वियसली. तो मैं अपने यंगर सेल्फ को हमेशा यही सिखाऊंगी कि जो चीज़ सहज होती है, जो चीज़ सरल होती है, वो असली प्रेम होता है और प्यार आपको हमेशा एक बेहतर इंसान बनाएगा. If you're becoming a worst version of yourself, you are definitely not in love. It's just a dopamine thing, you are liking कि अपने highs or lows and you are just getting addicted to that. तो वो बहुत ज़रूरी है. It's the adventure and the thrill that you're not able to find in other aspects of your life जो आप यहाँ manufacture करने की कोशिश कर रहे हैं. Speaking of manufacturing, I also realized that one of the things जो मैंने notice करी है that may be different between the younger generation and our generation would be that
हमारा प्यार इंस्टाग्राम पे इतना नहीं पहुंच पाता है जितना इनका पहुंचता है। हम सॉफ्ट लॉन्च नहीं कर पाते क्योंकि मैं आता ही नहीं है। कटरीना और विकी की तरह सीधे शादी की फोटो लगाते हैं हम। Can I tell you something very funny Please, here? please. You know, when I announced my divorce, after I announced my Roka with Karan, that is so I love that funny. That is so funny. That's when I felt safe कि अब मैं publicly इस बात, and when I announced my Roka, 1 year after it was done. वाओ। तो मैं ये भी थोड़ा सीख गई थी कि चीज़ों को प्राइवेट रखना कितना ज़रूरी है, चाहे आपका सुख हो चाहे आपका दुख हो। एंड आई एम दैट पर्सन इन जनरल, मैं अपनी चीज़ों को बहुत प्राइवेट रखती हूँ। बताइए। नो बट आई फाइंड दैट वेरी रिलेटेबल, बट आई वेंट अ स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने अपना डिवोर्स तब अनाउंस किया था जब मैंने अपने एक्स फ्रीज कर लिए थे। बिकॉज़ आई वाज लाइक अब तो मैं सिंगल मदरहुड करने ही वाली हूँ। Oh, that's so Might as well funny. tell people. But that's genuinely, that's so telling because we haven't taught people to feel safe about Yes. saying कि भाई I chose myself. Yeah. For whatever reason my marriage didn't work out Yeah. and मैंने अपने आप को चूज करने का डिसीजन लिया Yeah. है। ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। Yeah. सेफ्टी ही नहीं है लोगों के Yes, पास ये बोलने yes. की। अपनों से भी आपको ये बात करने में हिचकिचाते हो, राइट? कि लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे या लोग क्या सोचेंगे। एंड इंस्टाग्राम जनरेशन एज यू सेड एज वेल, आई थिंक इन चीज़ों का ऑनलाइन क्या रेपरकशन आएगा। एंड यू नो वी हैव ऑल सीन व्हाट हैपेंड विद कुशा एंड जोरावर एज वेल। एंड यू नो आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद हर recently. We were at the airport about how divorce, when people hear about the word, it becomes like a public spectacle जिसमें हर कोई एक अपना ही वो ले रहा होता है। Everyone has their own viewpoint of it, and we are living in the times of Reddit, and you know this there is so much that comes into the play as well. तो हम एक ऐसे ज़माने में भी रहे हैं, social media also makes us a little bit skeptical कि हम अपनी खुशी को भी कैसे अनाउंस करें, अपने दुख को भी कैसे अनाउंस करें और अपने आप को भी कैसे अनाउंस करें, राइट? कि दिस इज व्हाट आई हैव चोजन फॉर टू डू माई सेल्फ इन लाइफ, एंड दैट नीड टू अनाउंस थिंग्स पब्लिकली, इट्स जस्ट अ लिटिल। बट इफ यू डोंट अनाउंस देन यू आर ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ कि आप छुपा रहे हैं। मेरे डिवोर्स को 3 साल हो गए हैं एंड इट वाज ओनली लास्ट मंथ, नहीं हाँ दिवाली के बाद दैट आई वाज एबल टू से व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग समबडी एंड आई वाज विद देम फॉर 1 ईयर, तब मेरी हिम्मत खुली कि हाँ भाई मैं बोल दूं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड मीट मी एंड बी लाइक अच्छा दूसरा आ गया है, लाइक ओके आ गया है, मूव ऑन इन लाइफ। एंड maybe we don't understand it the way maybe the other generation sees it and processes it, but हमारे लिए शायद social media इतना, you know, making these public statements is not such a, it's not easy, and it's not such a thing also for us. Maybe I don't think इतना register करता है, which makes me question sometimes कि क्या ये, and I'm not saying that it's performative, but क्या ये performative की तरफ आने लगता है? आई डोंट नो। मैं चीज़ों के बारे में तब बात कर पाती हूँ इन जनरल जब मैंने उन चीज़ों को अपने आप प्रोसेस कर लिया होता है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों चाहे वो बुरी चीज़ें हों। आई एम लाइक दैट इन जनरल। मैं चीज़ों को पहले खुद प्रोसेस करती हूँ, उसके बाद जब मुझे लगता है अच्छा नाउ आई कैन टॉक कंफर्टेबली अबाउट दिस और राइट, मेरे केस में राइटिंग भी होता है। एक बार मैं चीज़ों को लिख देती हूँ तो मतलब कि एक हीलिंग का प्रोसेस मेरा शुरू हो गया है। तो मेरे लिए तो इट्स नॉट परफॉर्मेटिव, मेरे इट्स मोर लाइक अ रिलीज। एक बार जब वो चीज़ हो जाती है मुझे लगता है ओके नाउ इट्स डन, यू नो। अब एंड स्टोरीज ऑल्सो हेल्प अ लॉट ना तनया। लोग हमारी कहानी सुन के, मेरी कहानी आपकी कहानी सुन के, अ लॉट ऑफ वुमेन कैन रिलेट बिकॉज उनकी ज़िंदगी में ऐसी कहानी चल रही होती है जिसको वो किसी को नहीं सुना सकते। तो थोड़ा सा इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव आल्सो स्टार्टेड बिलीविंग इन द पावर ऑफ पर्सनल स्टोरीज। तो भले ही हमें लगता हो कि वो यार बताना पड़ेगा अब इंस्टाग्राम पे सबको कि क्या हुआ था, यू नो, कहीं ना कहीं कहानियाँ, ये कविता मुझे सुनानी पड़ेगी। एंड आई हैव रिटन अ पोएम अबाउट माय डिवोर्स, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड विद मी, गुड और बैड, देयर इज अ पोएम अबाउट इट और देयर इज अ स्टोरी अबाउट इट, बट द रेपरकशंस ऑफ दैट आर सो एम्पलीफाइड दैट आई ऑल्सो फील कि इन चीज़ों से बहुत सारे लोगों को बहुत पावर भी मिलती है। एंड यू नो वी आर इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो ये बातें नहीं कह सकते, नहीं कर सकते, वो सिर्फ सुन रहे हैं एक स्क्रीन पे और देख रहे हैं और कह रहे हैं यार यही तो चल रहा है ज़िंदगी में। तो वो भी बहुत ज़रूरी, इंक्लूडिंग दिस कॉन्वर्सेशन हियर। Yeah, I'm sure after this you and I both will get a lot of DMs when I announce my divorce. मेरे पास इतने लोगों के मैसेज आए थे that you know I saw you go through it and I knew something was wrong, but मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, and मेरी भी situation ठीक नहीं है, and you know seeing you and seeing other women gave me the courage, but मुझे बात यही जो शॉक करती है वो यही है that हमें करेज ढूंढना पड़ता है to leave situations that are not working for us. Yeah. It's very unfortunate. And
and fortunate at the same time. I think we are lucky to be able to do that as well. Like 100%. when I had my miscarriage, right, and I went online and I was reading everything, I realized that it happens to 1 in 7 women. But growing up, घर में किसी ने आज तक इस बारे में बात ही नहीं की थी. But the moment I came out with my own story, my own मासी, my own चाचा के भाई की लड़की, apparently उन सबकी ज़िंदगी में हुआ था ये किसी ना किसी पड़ाव पर, but कभी किसी ने बात नहीं की थी. And मेरी डिवोर्स के बाद भी ये हुआ था, a lot of people messaged me. But the story about my miscarriage has created so many waves in so many women. मुझे आज भी DMs आते हैं that you are the first person I'm telling that I miscarried today. ऐसे messages आते हैं मुझे. और तब मुझे लगता है कि ये जो पावर होती है पर्सनल स्टोरीज़ की और पर्सनल कॉन्वर्सेशंस की, ये एक अलग ही पावर होती है. यू आर गिविंग अ पीपल एन आउटलेट कि वो भी आपको बता सके कि उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है. इवन जब लोगों की सेकंड शादियाँ होती है, मुझे मैसेजेस आते हैं या फिर डिवोर्स के बाद कोई इंसान मिला है, आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी थी, आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू माय डिवोर्स एट दैट टाइम, और मुझे लगा था मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो जैसे आपको करण मिले मुझे भी ये मिला या कोई या कुछ. तो वो पढ़ के लगता है कि यार आई एम ग्लैड कि यू एंड आई आर इन अ पोजिशन जहाँ पे हम अपनी कहानियाँ सुना सकें एंड वी हैव एन ऑडियंस जो सुन रहे हैं. एंड इट्स सच अ ह्यूज प्रिविलेज कि नॉट ओनली हमारे पास वो ऑडियंस है कि वो सुन सके, बट ऑल्सो हमारे पास वो एजेंसी है, वो ऑटोनॉमी है कि हम सीना ठोक के बोल सकते हैं हाँ भाई ये किया, इस वजह से किया, एंड आई चोज माई सेल्फ. एंड दैट इज द काइंड ऑफ, फॉर मी दैट इज व्हाट लव 2.0 हैज बिन. Learning to choose myself over and over every single day again and again and again, instead of getting caught up कि हाँ भाई ऐसे बताया था, यूँ करना चाहिए या वैसे करना चाहिए. And that is where I learned the difference between what I used to think जब मैं छोटी थी versus what I now think. And it's very interesting कि इसी फ्रीडम से हमें डरना सिखाया गया था. Yes. How did you look at divorce when you were growing up? आपके लिए जब छोटे थे बचपन में, किसी को नहीं जानती थी who got divorced. I grew up in Allahabad. I don't think I know anyone who was divorced. I knew one person who was divorced, और उनके बारे में हमेशा जब भी बात होती है ऐसे कहती थी हाँ वो जो आंटी वो जो डिवोर्सी हैं, like the description of that auntie was that she was a divorcee. तो मैं तो ऐसे ग्रो अप हुई थी कि मुझे लगता था, आई वाज आल्सो वेरी रोमांटिक बाय नेचर, तो मुझे लगता था कि डिवोर्स इज लाइक द डी वर्ड, कि ज़िंदगी में अगर ये हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है. तो ये भी चीज़ मैंने 2.0 में सीखी कि ये जो हम लोगों ने लेबल्स लगाए हुए हैं, जो शब्द हैं जो इतने भारी भरकम लगते हैं, ये दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ. और ये चीज़ जब तक ज़िंदगी में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते. ना आपको उसके बारे में कुछ कहना चाहिए, ना आपको उसके बारे में कोई जानना चाहिए. शादी, डिवोर्स, पेरेंटहुड, यस, जब तक आप इस मझधार में खुद नहीं फंसेंगे तब तक आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें आप डूब सकते हैं या तैर सकते हैं या इससे उभर सकते हैं. सो इट्स वेरी इजी घर पे बैठ के किसी पे ये कमेंट करना जब तक आपने वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस ना की हो. तो आई वुड नॉट विश मिसफॉर्चून्स ऑन एनीवन, बट इवन फॉर्चून थिंग्स, राइट, जो अच्छी चीज़ें भी हैं, लाइक शादी, प्यार, हैविंग अ बेबी, ऑल दीज लवली थिंग्स एज वेल, यू विल ओनली अंडरस्टैंड देम व्हेन यू एक्सपीरियंस देम. और इसलिए ऑनलाइन भी मैं अपने ये दैट एम्पैथ इन मी इज़ ऑलवेज अलाइव, कि अगर मैं किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकती, कुछ अच्छा नहीं लिख सकती, आई वुड रादर बी क्वाइट एंड सी देम गोइंग थ्रू इट, एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट. And there's always so much to learn from everybody's story, and I think भाई आग का दरिया है और डूब के जाना है तो डूब के देख लो भाई क्या सीखने मिल रहा है. Absolutely, yes, बहुत ज़रूरी है. ये इश्क नहीं आसान. This has been such a delightful conversation. I can't thank you enough for your honesty and the kind of joy you bring to fighting for your life. I think that it's just very inspiring. Thank you. And I've had such a lovely time speaking to you. Me too.